Hello students of class 4th. Today I am going to teach you EVS, Environmental Studies. This is your EVS book, Green Pathway. I will start with chapter 1. Chapter 1, My Family, page number 7. Coming to the chapter, a family consists of two or more people, one of whom is the householder related by birth, marriage or adoption and residing in the same housing unit. A household consists of all people who live in a house and form relationships. Chapter name is My Family. My Family means मेरा परिवार. फैमिली में कितने लोग होते हैं? 2 या उससे ज़्यादा, जिसमें कोई हाउस होल्डर होता है जो कि बर्थ से ही उससे रिलेटेड होता है, फिर मैरिज होते हैं, फिर अडॉप्शंस होते हैं, फिर ऐसे एक फैमिली जो है वो चलती रहती है. A household consists of all people who live in a house and form relationships. हाउसहोल्ड जो है कंसिस्ट करता है उन सारे लोगों को जो एक घर में रहते हैं और एक रिलेशनशिप यानी रिश्ते बनाते हैं. इन दिस स्पेस व्हाट यू हैव टू डू इज पेस्ट योर फैमिली फोटोग्राफ. यहाँ पर आपको अपनी फैमिली फोटोग्राफ पेस्ट करनी है. राइट डाउन द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स हु लिव इन योर हाउस. यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेंबर्स के नेम लिखने हैं जो जो आपके घर में रहते हैं. Then types of family. There are 2 types of families, nuclear family and joint family. 2 types of family, nuclear and joint. यानी फैमिली 2 तरह की होती है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली, a nuclear family consists of parents and their children. A nuclear family is also called a traditional family. Nuclear families are of 2 types, small family and big family. A small nuclear family has parents and their 1 or 2 children. A big nuclear family consists of parents and their more than 2 children. न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं. न्यूक्लियर फैमिली को हम ट्रेडिशनल फैमिली भी कहते हैं. न्यूक्लियर फैमिली भी 2 तरह की होती है, स्मॉल और बिग यानी बड़ी और छोटी. स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं और बिग न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और उनके 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं. Now coming to joint family. A joint family consists of parents, children, grandparents, uncles, aunts and cousins. There are fewer joint families these days than there were earlier. Many family members leave homes in search of jobs or to continue with their studies. Joint family में parents, children, grandparents, अंकल, आंट और कजन्स. पेरेंट्स माँ बाप, चिल्ड्रन बच्चे उनके, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, अंकल आंट चाचा चाची, मामा मामी और उनके बच्चे यानी हमारे कजन्स. अब जॉइंट फैमिलीज इन दिनों बहुत कम हो गई हैं पहले से. पहले सबकी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, बट इन दिनों जॉइंट फैमिलीज बहुत कम देखने को मिलती हैं क्योंकि उन फैमिली के बहुत से मेंबर्स अपना घर छोड़कर जॉब की तलाश में या जॉब करने या पढ़ने के लिए दूसरी जगह पर जाकर सेटल हो जाते हैं. मदर एज अ चाइल्ड. इन द फैमिली एल्बम आरती सॉ सम पिक्चर ऑफ हर मदर एज अ यंग गर्ल. She observed that how her mother had changed over the years. We all change as we grow older. Our looks, likes and dislikes, habits, way of thinking and dressing sense also change.
a young girl, Aarti's mother was a good teacher. She was also a good dancer. She loved reading storybooks. Over the years, her mother has changed a lot. Now, she listens to music and watches news on television. She loves cooking and singing also. Aarti realized that we all change as we grow older. We may not live with our parents. We may live in a different city or country. Change is a part of our life and we should accept it. Mother as a child. Mother as a child means जब एक माँ भी कभी एक बच्ची हुआ करती थी. फैमिली एल्बम में आरती ने अपने मदर की यानी अपनी माँ की कुछ पिक्चर्स देखी जब वो यंग थी यानी जब वो लड़की थी और उसने ये ऑब्जर्व किया कि उसकी मदर इतने सालों में कैसे बदल गई. ये तो हम सब जानते हैं कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं यानी बदलाव आते हैं हमारे लुक्स में, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स यानी पसंद नापसंद में, हमारे हैबिट्स में, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे ड्रेसिंग सेंस में, मीन्स बहुत हर चीज़ों में ही कुछ ना कुछ चेंज तो आता ही है. एज ए यंग गर्ल Aarti's mother was a good teacher. जब आरती की मदर यंग थी मीन्स जब लड़की थी, यंग गर्ल थी, तब वो एक अच्छी टीचर हुआ करती थी. वो एक अच्छी डांसर भी थी और उनको स्टोरी बुक्स पढ़ना भी पसंद था. ओवर द ईयर्स हर मदर हैज चेंज्ड अ लॉट. और इतने सालों में उसकी मदर बहुत ज़्यादा बदल गई है. अब वो म्यूज़िक भी सुनती है और टेलीविज़न यानी टीवी पर न्यूज़ भी देखती है. उनको कुकिंग करना भी पसंद है और सिंगिंग यानी गाना गाना भी. आरती ने ये रियलाइज़ किया कि वी ऑल चेंज एज वी ग्रो ओल्डर. जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम सब में ही बदलाव आता है. वी मे नॉट लिव विथ आवर पेरेंट्स. हम अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते. वी मे लिव इन अ डिफरेंट सिटी और कंट्री. हम या तो दूसरे शहर में रहते हैं या हम दूसरे देश में रहते हैं. चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी शुड एक्सेप्ट इट. बदलाव ही हमारे लाइफ का नियम है. इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ मतलब हमारे लाइफ का एक पार्ट है जिसे हमें एक्सेप्ट करना ही होगा. Okay, now up to here, read the chapter again, understand it, and the rest which is left means the point animals and their young ones, humans and their children, and the last one adoption. We will do it in the next video.